everyone, a very warm welcome to the session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. सत श्री अकाल, नमस्कार, बॉन्जोर, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम करने वाले हैं डेमोक्रेटिक राइट्स को वन शॉट में. वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी शॉर्ट और सिंपल है, तो विल नॉट स्पेंड लाइक अ लॉट ऑफ टाइम सो दैट यू आर एबल टू रिवाइज एवरीथिंग इन शॉर्ट एंड क्रिस्प, बट येट कवर ऑल द important points which is really relevant and important for your preparation of exam. And with just this one video आप इतना ज़्यादा इतने अच्छे से रिवाइज कर लोगे सारे important इस पॉइंट्स को इस चैप्टर के, कि आप सीधा जाकर एग्जाम में सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो. सो ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद डेमोक्रेटिक राइट्स. Now guys, the topics that we'll be covering is of course going to be the entire chapter where we'll talk about the life without rights, rights in democracy, rights in the Indian Constitution, expanding scope of rights, etc. So let's get started, but before we do, I quickly want to take a moment to have a quick lens moment of the day. So the beauty of Imbibe Lens is that it's one of the biggest tool which if not explored, you are missing out on something very, very important. Because this is going to be very, very useful for you. Google has transformed our life. आपको जो भी चाहिए उसको गूगल कर लो, वीडियो ढूंढ लो, फोटो स्कैन करके सर्च कर लो. द सेम थिंग अगर हमें पढ़ाई में भी ऑफर कर दी जाए तो क्या बात हो, और वही हो रहा है. आप जिस भी टेक्स्ट में अटक रहे हो, जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, आपने सिर्फ उस टेक्स्ट का एक फोटो लेना है. सारे कीवर्ड्स अपने आप हाईलाइट होकर उससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज है, 3D मॉडल, 2D मॉडल, वीडियोज, वो सब आ जाएंगे विद इन सेकेंड्स, and you can explore and learn exactly what you want to and save a lot of time on doing your research and figuring out क्या देखना है नहीं देखना है. So let me show you how. I'm quickly taking a picture. So I've downloaded the app. I just need to give the access to my camera. I did that and I took a picture of what is there on my screen, as you can see. The moment I did that, all the important words got highlighted, as you can see over here on this screen as well. ये हमारी किताब को जब हमने स्कैन किया है तो जितने भी important keywords थे वो हाईलाइट होकर यहाँ आ जाते हैं और वो सजेशन के फॉर्म में यहाँ पे आने लग जाते हैं. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से I'm gonna pick, let's say, expanding scopes of rights. The moment I click on expanding scopes of right, सिर्फ उससे रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं and I can just get started with this, play it and learn about it. How amazing and beautiful is that? So that is the beauty of Imbibe Lens. It helps you, it enables you in every way possible to access all the information just with one click and just by taking one picture. So it's a huge tool, it's a great tool as students for us, which helps us save a lot of time. So on that note, with like super happy feeling, let's get started. And also let me quickly introduce myself. Hi बच्चों, मेरा नाम है अंकना. मैं हूँ आपकी expert for social sciences at Imbibe. I come with an experience of more than 9 years in the field of education, wherein I've taught both online and offline to the students of CBSE and ICSE. I have done my studies in the field of humanities, hence I specialize in English and social science. So let's get started with 3 questions. क्योंकि ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ एग्जाम के पहले एक वन शॉट रिविजन कर रहे हैं, तो फटाफट 3 सवालों से शुरू करते हैं. ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इन अ डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ राइट्स? To ensure the majority can do whatever they like without restrictions. To guarantee that government can take away the rights of others when necessary, to protect the rights of the minority from potential oppression by majority, or to grant elected governments an authority to dictate citizens' rights. क्या पॉसिबली वजह हो सकती है डेमोक्रेसी में प्राइमरी राइट्स देने की, किसी को भी जो फंडामेंटल राइट्स हम देते हैं ग्रांट करने की, क्या रीज़न हो सकती है? जस्ट रीड योर ऑप्शंस केयरफुली, थोड़े लंबे ऑप्शंस हैं.
सो आइडिया क्या होगा बच्चे, सिंपल होता है, हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी जो है कभी भी मेजॉरिटी से प्रोटेक्टेड रहे, एक्सप्लॉइट ना हो। फॉर दैट मैटर कोई भी सिटीजन मेजॉरिटी या माइनॉरिटी हो, गवर्नमेंट से एक्सप्लॉइट ना हो। सो इन अ डेमोक्रेसी राइट्स ऑल्सो प्ले अ वेरी पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस। माइनॉरिटीज आर प्रोटेक्टेड बाई राइट्स फ्रॉम मेजॉरिटी ऑपरेशन। They make sure that the majority is restrained from acting as it pleases. राइट्स जो है वो सेफ गार्ड करती हैं किसी को भी, किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो सरकार से हो, मेजॉरिटी से हो, एंड गिव सिटीजन्स व्हेन सम सिटीजन्स वांट टू रिस्ट्रिक्ट अदर्स लिबर्टीज, ये कहीं गड़बड़ी ना हो, राइट से लोगों का प्रोटेक्शन हो सके। दैट इज द होल आइडिया ऑफ हैविंग राइट्स, राइट। सो टिपिकली मेजॉरिटी कभी माइनॉरिटी के ऊपर रूल करने की कोशिश करती है तो ये फंडामेंटल राइट्स, या गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है तो ये फंडामेंटल राइट्स ही हैं जो काम आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज दे आर इन द मेजॉरिटी ऑफ डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। Some fundamental rights that we all enjoy are granted a special status. We refer to them as fundamental rights. It discusses securing its justice, liberty, and equality for all citizens. As stated by fundamental rights, promise put into action. There is an essential component of India's constitution. Which of the following is not a fundamental right? तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है। Right to property, right to freedom, right against exploitation, or right to equality. Which of the following is not a fundamental right? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि देख करके ऐसा लगेगा कि अरे ये तो सारे राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स है, बट बेसिक्स में हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो। वो राइट हो सकता है जो हमें दिया गया है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली नॉट अ फंडामेंटल राइट। Okay guys, so right to freedom, right against exploitation, right to equality, all of these are basically our fundamental rights. ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी आता है कहीं ना कहीं आपके हमारे राइट्स में, स्पेशली फॉर फीमेल्स भी ग्रांट किया गया है, लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। Until a change was made to the Indian Constitution in 1978, the right to property was considered a fundamental right, but as per the Article 31 and Article 19, Part 3 of the Constitution's fundamental rights were totally abolished as the part of this amendment, the 44th of the Constitution. Okay, one more question before we get started, and here we go. Which of the following statements violates द राइट टू फ्रीडम? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट टू फ्रीडम को वायलेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट है कहीं ना कहीं? द स्टेट पॉलिसी डज नॉट अलाउ पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स टू एंटर अ स्टेट. द सन अ स्ट्रीट वेंडर इज नॉट अलाउड टू ओपन अ स्वीट शॉप इन द विलेज, और बोथ ए एंड बी.
So guys, in all of these cases, what we see is that some very basic things are being denied to the people, which doesn't make sense because there is no ground for it. And the fundamental right is being violated both in A and B as a result of that. So the correct answer is going to be both A and B. दोनों ही जगह पे क्या हो रहा है, क्यों स्टेट में दूसरे स्टेट के लोग को घुसने नहीं दोगे, वो तो पूरा मतलब देश का है, एक देश से दूसरे देश में घुसने नहीं दे, वो चॉइस फिर भी हो सकती है क्योंकि अलग अलग देश के लोगों को आप सेम राइट्स ग्रांट नहीं करते. और कोई अगर शॉप खोलना चाहता है विलेज में तो क्यों रोका जाएगा उन्हें, राइट? तो राइट टू फ्रीडम ग्रांट करती है कि आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी मूव कर सकते हो, कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड यू हैव अ फ्रीडम ऑफ दैट. सो दैट इज व्हाई both these cases were violation. Now, have you ever thought that the freedom we enjoy today was actually not possible a few decades ago when Britishers were here, right? What lives without, if we were born back at that time, how we would have survived? कैसा लगता होगा वो जीवन, कैसी लगती होगी वो struggles, और कितना ज़्यादा desperation होता होगा to come out of that, right? So that's all that we are going to discuss today in this chapter. Let's get started. सबसे पहले हम examples देखते हैं. 4 इंस्टेंसेस हमें दिए गए हैं अलग अलग कंट्रीज के जहाँ पे लाइफ विदाउट राइट्स की बात की गई है. सबसे पहले हमारा प्रिजन ग्वांटानामो बे की बात की गई है. देन अपोज ऑफ द इम्प्रिजनमेंट एंड देन we have citizens' right in Saudi Arabia, and then there is the ethnic massacre in Kosovo. So we'll start with what happened in prison of Guantanamo Bay. सो बच्चे यूएस ने क्या किया, बेसिकली 9/11 जब इंस्टेंस हुआ था उसके बाद दे वर पिकिंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन वेर एवर दे वुड फाइंड समथिंग रॉन्ग, एंड अ लॉट ऑफ दैट वाज आल्सो वेरी मच religiously aligned, or particular countries and their citizens were being targeted. Even if there was no evidence or proof, people were being picked up and without any trial being put into the prison and being punished for it. So the US military basically covertly abducted, इसलिए abducted word यूज किया गया है क्योंकि covertly किया गया है. अगर आप किसी को भी कभी भी जेल पहुंचा रहे हो, imprison कर रहे हो, तो you have to give a proper declaration as to why they are getting arrested. Somebody of their family has to be informed. Proper information has to be around there. People are supposed, and even in the jail there are fundamental rights given, जैसे कि आपको आपका lawyer मिलना चाहिए, आपको एक phone call मिलना चाहिए, आपको जो है आपके फैमिली मेम्बर्स मिलने आ सकते हैं. पर इन्होंने 600 लोगों को उठाया फ्रॉम around the world from whatever information that they had and imprisoned them in a place called Guantanamo Bay in Cuba. A lot of people of human rights, the family of these members, they came, but there was no declaration whatsoever of who they had taken in custody. No fundamental rights were being given to them. कोई grant नहीं दिया जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, and this clearly is violation of the fact that these people were there as humans. So inhuman treatment was being done with them. तो ये prison of Guantanamo Bay में हो रहा है. So you have to tell me, the US government accepted the proposal by the UN Secretary General, but the prisoners of Guantanamo Bay were not about the prisoners of Guantanamo Bay. Is this true or is this false? इस यहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं अभी. वी हैव टू डिस्कस एज टू व्हाट हैपन्स नेक्स्ट बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट नो राइट्स आर बीइंग गिवन देम व्हाटसोएवर. So guys, this is actually not true. They did not accept what happened. So a position of imprisonment starts, people start speaking against it. Human rights वाले आते हैं, families वाले आते हैं, and Amnesty International was this human rights organization जो international global organization है, वो आती हैं, वो prisoners के अगेंस्ट जो टॉर्चर हो रहा है, जो भी मेथड यूज़ किया जा रहा था यूएस लॉ के द्वारा, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज़ उठाते हैं. दे ट्राई टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ मीडिया. अल्टीमेटली यूएन को इंटरवीन करना पड़ता है बिकॉज
आपका जो यूएस में हो रहा था, नोबडी वाज, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, नोबडी वाज लिसनिंग टू इट. सो naturally when these guys came in, the prisoners were still not released, even if they were not proven to be guilty. They probably would have been, but they were not proven to. So UN Secretary General ने आकर के intervene किया, because it was an international matter. The citizens were of a different country. They were not being granted anything in US, on the US soil. So the secretary came in after a close down of the detention center, and the US government was asked to release them because there was either present evidence against them or proof that they were guilty. US government, however, did nothing of that sorts. उन्होंने कहा आपने जो करना है करो, हमने इनको उठा लिया है, हम इनको जैसे हैंडल करना है हम करेंगे. So that is one place where we see, imagine these people are caught there, they are getting no rights, कोई फ़ोन कॉल नहीं, परिवार से मिलना नहीं, परिवार को पता भी नहीं है कि उनके परिवार वाले वहाँ जेल में हैं कि कुछ और हो गया उन्हें, कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि कौन से सिटीजन्स हैं, कोई ट्रायल नहीं हुआ है और उनको जेल में रख लिया गया. अब सऊदी अरेबिया की बात करते हैं. सऊदी अरेबिया में फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, औरतों को गाड़ी चलाने के भी राइट्स नहीं थे, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता था. सो द सिटीजन्स ऑफ द नेशन, ऐसी उनके पास कोई पावर नहीं है, बिकॉज डिक्टेटरशिप, मोनार्किकल सॉर्ट ऑफ ऑटोक्रेटिक सेटअप है, और यहाँ पे किंग रूल करते हैं. ठीक है. सो द सिटीजन्स, दे हैड नो पावर टू चूज और रिप्लेस द हेरिडिटरी किंग हु रीन्स ओवर, यानी कि फुल मोनार्की चल रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की नहीं है, कुछ नहीं है, सारी पावर है, ऑटोक्रेसी है. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों सिटीजन, जो दोनों ही चीज़ें हैं वो किंग के अंडर है. इनफैक्ट जुडिशरी भी जो है उसके जजेस किंग ही अपॉइंट कर रहा है. यानी कि 3 जो मेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किसी भी देश को चलाने में चाहिए होते हैं, जो कि आपका होता है लॉ मेकिंग, जो कि आपका होता है एग्जीक्यूटिव, उस लॉ को एग्जीक्यूट करना, एंड ऑफ कोर्स जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए लॉ मेकिंग और एग्जीक्यूटिव से, ताकि अगर लॉ मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो जुडिशरी उसको सॉल्व कर सके, जुडिशरी उसको रिजॉल्व कर सके और लोगों को जस्टिस दे सके. लेकिन यहाँ पे जजेस भी किसके द्वारा अपॉइंटेड है? किंग के द्वारा. तो इट्स नॉट लाइक कि इंडिया में जैसे जजेस अपॉइंट हो रहे हैं प्रेसिडेंट के द्वारा तो वो प्रेसिडेंट की ही बात मानेंगे, दे आर इंडिपेंडेंट, right? But the appointment of judges being done by the king over there doesn't mean that they were free. They had no freedom. They were not independent. They were going to do things in favor as the king wanted and be aligned completely with the king all the time. सो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसकी फॉर्मेशन या कोई भी दूसरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो सिटीजन्स को बनाना अलाउड नहीं था. यानी कि आप कोई भी जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कुछ फॉर्म नहीं कर सकते थे. साथ ही साथ कोई फ्रीडम नहीं थी रिलीजन की, यानी कि सेक्युलर स्टेट नहीं है. अगर आप किसी इस्लामिक स्टेट था ये, अगर आप किसी दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते भी हो तो आपको जो है आप घर में प्रैक्टिस करो, पब्लिक में आपको कुछ अलाउड नहीं है. घर में पूजा पाठ करना है, प्रेयर करना है, जो भी करना है, आपके जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो आप अपने घर में कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे रेसिडेंट्स जो मुस्लिम नहीं है उन्हें प्राइवेट में ही अपनी सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ करनी है. दे वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनीथिंग इन पब्लिक. अगर आप पकड़े गए, if there was a possibility that you were caught doing something, any prayer, anything, any religious activity in the public, then there would be a punishment for it. And there were also a lot of other social constraints placed on women, जैसे कि औरतों को कोई rights नहीं था, कोई say नहीं था. अगर वो कुछ डिसीजन ले भी रही हैं, मतलब अगर वो कुछ स्टेटमेंट दे भी रही हैं, तो उनकी जो वैल्यू थी स्टेटमेंट की वो हाफ कंसिडर की जाती थी टू दैट ऑफ अ मैन. सो यू कैन अंडरस्टैंड देयर वाज नो इक्वालिटी ऑल्सो. सो सऊदी अरेबिया फॉलोज अ रिजिड सिस्टमैटिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अपार्ट फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स?
So, guys, this statement is actually absolutely true. We have seen the kind of discriminations and all the discriminatory policies that have been formed, and women definitely had no rights, not even equal ट्रीटमेंट दैट वो बीइंग गिवन टू देम. इनफैक्ट औरतों को बिना मर्दों के कई बार तो जाना भी अलाउड नहीं होता है, ऐसा भी हुआ है कई सारे देशों में. चलो एथनिक मैसेकर इन कोसोवो की बात करते हैं. तो यहाँ पे सर्बियंस जो थे वो मेजॉरिटी में थे यूगोस्लाविया में, और अल्बेनियंस जो थे वो माइनॉरिटी में थे वहाँ से शिफ्ट होकर के. तो स्लोबोडान मिलोसेविक जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होता है, यानी कि अल्बेनियंस ने भी वोट किया है. नेशनली सिर्फ सर्बियंस ने वोट नहीं किया होगा और वो जीत गए होंगे. डेमोक्रेटिकली अगर वोटिंग हुई है तो कुछ ना कुछ माइनॉरिटीज़ ने भी उनके फेवर में वोट किया होगा. और ये सर्ब लीडर थे, ठीक है, ही वॉज द लीडर ऑफ द सर्बियन ग्रुप. He wanted to rule the nation, got the vote, got elected democratically, सब कुछ हो जाता है. But then once he becomes the leader, he wanted to basically eliminate all the Albanians from there. So he started a horrific slaughter which resulted in deaths of thousands of Albanians, innocent people who had no fault, just the fact that they were living there. इसके अलावा उनकी कोई गलती नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन they were basically being punished, they were being killed, they were being executed. एक innocent family बैठकर डिनर कर रही है और अचानक सोल्जर्स आते हैं, अटैक करते हैं, पूरे घर को जला देते हैं, बच्चा माँ बाप सब मर जाते हैं. and all of them innocent, had nothing to do, no personal, not even like a personal kind of conflict with the leader or with any other thing. They had encountered nothing of that sort. So it went on for a while, but after one point Slobodan did lose the power and was tried for the crimes against humanity by the International Court of Justice. So we see that because it was happening in the nation, it was a local thing and the judges were not intervening, nothing was happening. He was the leader, elected leader democratically, so the International Court of Justice had to intervene. As a result, Kosovo में क्या होता है, where the Albanians make up the bulk of the population, proclaimed its independence in February of 2008. तो उस हिस्से में अल्बेनियंस ज़्यादा रहते थे, कंट्री अदरवाइज पॉपुलेटेड इतनी नहीं थी, उनको फिर आज़ादी मिल गई. So Milosevic wanted Kosovo to become a Serb dominated country. Is this true or is this false? So guys, this is actually absolutely true. That's what we have been reading. He did want that and hence he started the massacre. So the statement will be marked as true and that is the correct answer. Moving on. तो अब हमें समझ आता है व्हाट आर द मीनिंग ऑफ राइट्स, है ना, लोगों के लिए राइट्स कितनी इंपॉर्टेंट है. जब मिलोसेविक की भी एग्जाम्पल हम देखते हैं तो राइट्स जो है वो जस्टिफाइबल डिमांड्स हैं हर एक इंडिविजुअल के. आपको लग सकता है कि यार कंट्री तो है ही, अपने हिसाब से सब चल ही रहा है, तो आपको राइट्स क्यों चाहिए, आपको अपनी हक की बात क्यों करनी है. आप यहाँ के सिटीजन हो, सब साथ में रहो, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो. लेकिन बात ऐसी है कि कभी अगर गवर्नमेंट ही हॉस्टाइल हो जाए, चाहे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ या पूरे देश की तरफ, एक पर्टिकुलर जेंडर की तरफ, कुछ भी सोशल फैक्टर हो सकता है, एथनिक फैक्टर हो सकता है, कोई एथनिक ग्रुप हो सकता है, या कोई रिलीजन हो सकता है, या जेंडर हो सकता है, तो ऐसे केसेस में ये सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, ये सिटीजन्स अपने आप को कैसे बचा सकते हैं. ऐसे केसेस में बचाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ लॉ हो जिसका सहारा लिया जा सके, जो इन लोगों को प्रोटेक्ट करके रखे, चाहे वो मेजॉरिटी की डोमिनेंस माइनॉरिटी के ओवर हो या गवर्नमेंट ही अचानक से हॉस्टाइल हो जाए और वो कुछ बंच ऑफ सिटीजन्स को या सारे सिटीजन्स को परेशान करने लगे. सो वी रेफर टू इट एज वायलेशन ऑफ आवर राइट्स where other citizens or government do not respect those rights and violate them. In these circumstances, citizens can go to the court to defend their rights. ताकि एक रिटन फॉर्म में अगर हो तो लोग जाकर अपने हक की
लड़ाई कर सकते हैं. So the need of the rights is very simple. So here the question can be that why do we need rights? 3 marks का, 5 marks का, जो भी है, this is your answer right here. First of all, to protect the people if anyone gets hostile, be it a majority group or a minority group. Second, it's very important, democracy का essence है right to equality and these some empowerment, citizens being at the center of the power. So the rights are essential for them to ensure the very spirit and essence of democracy and give them those rights which protects them against anything hostile or exploitative that happens with them in the nation in present or future. Every person needs to have the right to vote, the right to be elected to the office in a democracy for equality purposes, for granting them the same things that other citizens have, especially in a democracy, at least in a democracy. Minorities को safeguard करती हैं ये rights majority के persecution के against, right? And when anything goes wrong, ये rights ही है जो एक guarantee की तरह इस्तेमाल की जा सकती है by the people, even if it is the government that is going against the people or violating these rights. क्योंकि देखो, कोई दूसरा इंसान कर रहा है, कोई कम्युनिटी कर रही है, आप जुडिशरी के पास जा सकते हो, आप सरकार को अपील कर सकते हो, लेकिन जब सरकार ही वो वायलेटर बन जाए तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमें रिटन राइट्स चाहिए होती है जो हमें गारंटी प्रोवाइड करती है, जो हमें हेल्प करती है टू गेट थ्रू दिस. So some fundamental rights are granted special status under the Indian institution. सेम चीज़ को इंश्योर करते हुए इंडिया में भी हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं. ये टोटल आपके 6 राइट्स हैं जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं. इन्हें हमें कभी भी हमसे कोई नहीं छीन सकता until unless there is an emergency when these rights will be suspended. But these rights are intended and created with the idea to protect the people at any point in time wherever the government tends to get hostile towards us. ठीक है? So here is your first question. I mean, like, not first question, one question. We'll talk about the rights also. The demand for the provisional of certain fundamental rights was first made in which year? वो कौन सा साल था जब हमने रियलाइज किया कि हमको कुछ हक तो चाहिए? और देखो बच्चों, ये डिमांड हमने हमारे आज़ादी के पहले ही रख दी थी, क्योंकि हम देख रहे थे कि हमारे पास भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल था जो हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा था. वायलेट क्या कर रहा था? हमें कोई भी राइट दिया नहीं जा रहा था. हु आर वी टॉकिंग अबाउट? एनीवेज, यू नो हु आर वी टॉकिंग अबाउट. Which was the year where the very first time fundamental rights were basically सो गाइज इट वॉज 1931. बच्चों 1931 में हमने पहली बार डिमांड रखा. हमने कहा बस भैया बहुत हो गया, हमें हमारे राइट्स चाहिए, आप हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स दे दो. ठीक है, तो हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स फाइनली बने जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया, जब हमें आज़ादी मिल गई. सो द राइट्स दैट वी स्टार्टेड विथ वॉज राइट टू इक्वालिटी. हमारे फंडामेंटल बेसिक राइट्स है, कुछ भी हो जाए आपको, आपसे ये कोई नहीं छीन सकता है. अगर आप कहीं पे भी कोई वायलेट कर रहा है, आप हमेशा जाकर जुडिशरी से अपील कर सकते हो एंड जुडिशरी विल लिसन टू यू प्रोवाइडेड द एविडेंसेस आर देयर. राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. अब इनका क्या मतलब है ये एक एक करके हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में. हमें कुछ बेसिक चीज़ें वैसे भी पता है और ये जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे. सो पहले आता है राइट टू इक्वालिटी. क्या मतलब है इसका? आप किसी रिलीजन, किसी रीजन, किसी कास्ट, किसी भी जेंडर के हो, जो आपका हक बनता है देश में वो आपको मिलेगा और वो हक सबके लिए बराबर होगा. सारे लोग वोट करेंगे, सारे लोगों के वोट की वैल्यू बराबर होगी, सारे सिटीजन्स की वर्थ बराबर होगी और सबके लिए रूल्स रेगुलेशन सेम होगा. चाहे आप किसी भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आओ, चाहे आप पॉलिटिकली कितने भी अफ्लुएंट हो, चाहे आपका जो जेंडर हो, जो रीजन हो, जो लैंग्वेज हो, जो कल्चर हो. इफ़ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया,
ये ध्यान रखना। आपको यूरोपियन आकर के यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स क्लेम करने लगे तो वो नहीं होगा। बट इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन ये बेसिस है हमारे डेमोक्रेसी का कि पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगी और सबको बराबर मिलेंगी। सो इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ. The law is the same for everyone. There is the rule of law. No citizens will be subjected to discrimination by government or by any individual solely on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth or culture or language, any social factor. Then we have the right to freedom, right to equality के बाद freedom of speech, freedom of expression. असेंबल करने की फ्रीडम है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो क्योंकि आप डेमोक्रेसी में हो। आपको सरकार से प्रॉब्लम है, पीसफुल होनी चाहिए, लेकिन आपको सरकार से प्रॉब्लम है तो आप अपनी आवाज़ उठाओगे। आपको सरकार को क्रिटिसाइज करना है, आप करोगे। अगर आपको लगता है कुछ बेटर है तो आप वो बताओगे, आपको लगता है कुछ गलत है तो वो आप हाईलाइट करोगे। एंड द गवर्नमेंट विल नॉट स्टॉप यू एंड द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवीन विद दिस इज द आइडिया. So people have the right to form associations, people can form unions and cooperative societies as well. There is right to move freely because ये पूरा देश आपका है, ठीक है। आप कहीं भी जाकर के रह सकते हो until unless you are violating some rule. आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि एक जगह पे कहीं आप पे केस चल रहा है वहाँ से भागकर कहीं और चले गए और हाइडिंग में चले गए, वैसे केस में वापस ला करके पनिश किया जाएगा। बट द आइडिया इज इफ देयर इज नो रूल्स बीइंग ब्रोकन देन यू कैन रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री. द एंटायर कंट्री बिलोंग्स टू एवरी सिटीजन एंड यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. यही क्वेश्चन हमने शुरू में देखा था, तो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जैसा था जहाँ पे क्या किया गया है, आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो है वो चेक किया गया था। आपको 2 सिनेरियोज दे दिए गए थे। तो फ्रीडम के अंडर किस किस चीज़ की फ्रीडम है? स्पीच की, आप कुछ भी कह सकते हो, हेट स्पीच नहीं फैलाना है, क्रिटिसिज्म कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव एक्सप्रेस कर सकते हो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, थ्रेटेंड लग रहा है, जैसा भी लग रहा है। आप असेंबल कर सकते हो, यानी कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप अपना धरना दे सकते हो, चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी मूव कर सकते हो, कहीं भी रिसाइड कर सकते हो। और कोई भी प्रोफेशन ऑफ कोर्स इलीगल नहीं होना चाहिए, हैज़ टू बी लीगल, ठीक है। अब मैंने कहा कि भैया मुझे जो है ड्रग्स बेचने, तो मुझे थोड़ी उस प्रोफेशन की आज़ादी मिल जाएगी। इट हैज़ टू बी लीगल बट यू कैन कैरी ऑन एनी ट्रेड, एनी बिजनेस दैट यू वांट टू गो अहेड विद, दैट यू हैव एंड मूव फॉरवर्ड विथ इट, ओके। Then we have right against exploitation. What do we mean by rights against exploitation? So बच्चे, especially coming from the background that we do, we have a very predominant system of caste. Casteism की वजह से बहुत लंबे समय तक डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों को प्रैक्टिस किया गया है, लोगों से भेदभाव किया गया है, अनइक्वल ट्रीटमेंट की गई है, अनइक्वल राइट्स दिए गए हैं। ये सब हुआ है। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इस चीज़ को ग्रांट करता है कि किसी भी सोशल या एथनिक ग्रुप को उनके आइडेंटिटी के बेसिस पे या फॉर दैट मैटर इवन इकोनॉमिकल, कि गरीब है वो कुछ नहीं कर सकते तो उनको हम एक्सप्लॉयट करें, नहीं, किसी भी बेसिस पे आप कुछ नहीं कर सकते, एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, सबके अपने राइट्स हैं, आप उनको रहने देंगे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, लोगों का खरीदना बेचना, स्लेवरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब बंद है। कोई किसी को खरीद नहीं सकता, इंसान को कोई बेच नहीं सकता, ह्यूमन बींग को। यूजुअली बच्चों के साथ और औरतों के साथ ये इमोरल प्रैक्टिसेस देखी गई हैं, वेयर देन फर्दर ऑन देयर पुश टुवर्ड्स स्लेवरी और प्रोस्टिट्यूशन, प्रॉब्लम्स लाइक दीज। सो ये नहीं होगा, स्पेशली इफ दे डोंट वांट इट। अगर वो चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, वो खुद हो सकते हैं फोर्सफुली, पैसों के ट्रांजैक्शन के एक्सचेंज में दिस विल नॉट बी अलाउड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर और बेगार, जैसे मैंने आपको बोला इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन भी अलाउड नहीं है कि काम करा लिया मुफ्त में, फोर्स करके, डरा धमका करके। गांव में पहले बहुत होता था कि लोगों को मुफ्त में काम कराया जाता था, कि कास्ट का वो दे करके या कुछ भी धमकी दे करके, पावर एक्सर्ट करके कि आप मेरे लिए काम करो एंड आई विल नॉट इवन पे यू। तो ये फ्री लेबर जो मुफ्त का बेगारी कराते थे वो भी अलाउड नहीं है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर एज वेल, विच मीन्स लेस देन
लेस देन करना है मुझे, लेस देन 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रेन विल नॉट बी, आई मीन इफ दे वर्क इट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझना ज़रूरी है कि इन सब की अपनी डिटेल्स हैं, अपने इंट्रिंसिक फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि आपने बहुत सारे यंग चाइल्ड एक्टर्स देखे होंगे, तो आइडियली अगर वो यंग चाइल्ड एक्टर्स है 4 साल के, 7 साल के, 12 साल के, महीनों के, तो अगर वो काम कर रहे हैं मूवीज़ वगैरह में तो क्या हो रहा है, ये भी तो चाइल्ड लेबर है, बट वो फिर अलाउड है। वो कैसे अलाउड है? तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट लेबर और हार्ड लेबर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। उसी के ऊपर ये पूरी चीज़ बेस्ड होती है, सॉफ्ट लेबर एंड हार्ड लेबर का, ठीक है। चलो, so right against exploitation gives us right to profess, practice and propagate our own religion. Right against exploitation की बात की जा रही है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? सो गाइज, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन रिलीजन की बात नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बात करता है, सॉरी फॉल्स होगा ये, रिलीजन की बात नहीं करता है। आई वॉज थिंकिंग एंड आई मार्क्ड इट रॉन्ग, आई हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स नाउ। रिलीजन की बात नहीं करता है, वो बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर बेगारी, इन सारी चीज़ों की। रिलीजन वाली राइट टू रिलीजन है जो हम देखेंगे आगे, जो सेक्युलरिज्म से भी रिलेटेड है। हियर इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो सेक्युलरिटी भी हमें यहाँ पे ग्रांट करती है इंडिया में, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अ सेक्युलर कंट्री। सो इसका मतलब ये है दैट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन दैट वी हैव, दैट वी प्रमोट और फॉस्टर और फेवर। Every individual in our country is allowed to practice whatever religion they want, unlike Saudi Arabia. देखो सऊदी अरेबिया में क्या था कि अगर आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर भी रहे हो, आपको मना नहीं है, आप कर लो, लेकिन आप पब्लिक में जाकर के कुछ उसकी चीज़ें नहीं प्रैक्टिस कर सकते, कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ये भी सिस्टम है। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हर एक इंसान को पब्लिक में भी प्रोफेस करना है, प्रोपगेट करना है, प्रैक्टिस करना है, जो करना है वो अपने रिलीजन को कर सकते हैं। यानी कि आप रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें जो भी मन आए वो कर सकते हो। ईच सेक्ट और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन रिलीजियस एक्टिविटीज़, पब्लिक में, प्राइवेट में, जैसे भी, until unless it's harming anyone else or is not being peaceful, it is absolutely fine. The freedom to spread one's faith does not grant one the authority to use pressure, fraud, seduction or allurement of force another person to adopt it. यानी कि आप प्यार से प्रीच करो, किसी को पसंद आए, वो अडॉप्ट करना चाहता है रिलीजन तो करे, आप प्रोपोगेट करो, आप उसे स्प्रेड करने की कोशिश करो, वो भी अलाउड है। लेकिन आप किसी को जोर ज़बरदस्ती से फोर्स नहीं करोगे, किसी के ऊपर थोपोगे नहीं कोई भी रिलीजन कि आप ये करो, और सेक्युलरिज्म बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस। So here is next question that we have. Dash country denies the religious freedom to the citizens? India, Saudi Arabia और England? वो कौन सा देश है जो रिलीजियस फ्रीडम जो है वो डिनाई करता है अपने सिटीजन्स को? हमने इसका एग्जाम्पल देखा है इस चैप्टर के बिगिनिंग में ही, केस स्टडी के फॉर्मेट में।
सऊदी अरेबिया इज़ द नेशन यू गाइस जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है सिटीजन्स को. इनफैक्ट अगर वो कर भी रहे हैं तो दे आर अलाउड ओनली इन द प्राइवेट स्पेस. नो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ देयर रिलीजन एंड देयर एक्टिविटीज इज अलाउड and it's in fact a punishable offense also. and women को भी बराबर की treatment नहीं दी जाती है. Now talking about the cultural and educational rights. Any group of citizens has the right to protect its unique language and culture. No citizen may be denied admission to a government-run or government-funded educational institution on the basis of their religion or language. All minorities have to have the right to create and manage educational institutions of their choice. क्या समझ आया? प्राइवेट देखो, प्राइवेट कोई स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें हम इंटरवीन नहीं कर सकते बिकॉज दैट हैज़ टू बी लाइक अ प्राइवेट कॉल. सरकार क्या कर रही है, देश क्या कर रहा है, तो कोई अगर प्राइवेटली भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, दे हैव टू फिगर आउट हाउ दे विल डू इट. बट अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए या कुछ ऐसा जेंडर के लिए स्कूल खोलती है, जैसे वी हैव ऑल गर्ल्स ऑल बॉयज स्कूल, तो वो वैसा ही सेटअप बना हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट डजंट मीन दैट दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग, राइट, बिकॉज इट इज मेंट टू बी जस्ट फॉर गर्ल्स और बॉयज. बट अ प्लेस वेयर लेट्स से देयर इज एवरीवन अलाउड बट अ पर्टिकुलर सोशल दिस थिंग इज बीइंग टारगेटेड कि बाकी सब अलाउड है, आप नहीं, वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, तो राइट टू इक्वालिटी को हैम्पर करेगा, तो वो अलाउड नहीं होगा. बट अदरवाइज सिटीजन्स जो हैं उनको पूरा परमिट है कि अपना कल्चर प्रैक्टिस करें, अपना लैंग्वेज प्रैक्टिस करें जितना हो सके, जैसे हो सके. और कोई भी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन जो है, कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है, वहाँ पे रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा. अगर आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हो, सरकारी स्कूल में जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, तो आपसे वहाँ पे कोई इसके बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकता है. सारी माइनॉरिटीज़ को हक है कि वो अगर अपना स्कूल खोलना चाहें, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं मिशनरी स्कूल्स रन करते हैं, या इस्लामिक इस्लाम में हम देखते हैं कि मदरसा रन करता है, तो वो अगर अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, अपने एजुकेशन को प्रोपेगेट करना चाहते हैं, अपने कल्चर को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो बेशक ऐसा कर सकते हैं until unless there is anything being done against humanity, against peace, or something like negative is being fostered or hatred is being spread, then also the government will only intervene, will not like stop people, will do a due diligence to figure it out, and if proven then action will be taken. Otherwise everyone is allowed to spread whatever their identity is. So the question is, a formal written order issued only by Supreme Court or High Court directing a public official is called writs or petition. Actually हम यहाँ पहुँचे नहीं हैं अभी, but I'm sure you'll be able to answer this. सो गाइज, जब सुप्रीम कोर्ट या मतलब बेसिकली कोई भी कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल को डायरेक्ट करता है तो रिट्स होता है. जब हम कुछ अपील फाइल करते हैं तो उसे पिटिशन बोलते हैं, वो पिटिशन होता है, ठीक है. सो
अब आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सबसे बड़ा मतलब ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का बिल्कुल वो है, बाप है एक तरीके से, क्योंकि ये आपको वो फंडामेंटल हक दे रहा है कि अगर आपका कोई और फंडामेंटल राइट या कोई भी राइट इन जनरल वायलेट हो रहा है तो आप जा कर के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ले सकते हो, आप हेल्प सीख कर सकते हो, ये आपका हक है। वरना पता चला सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हम बोल रहे हैं तो कह रहे हैं हाँ तो पर किसने बोला कि तुम उसके लिए लड़ सकते हो, हम ग्रांट नहीं कर रहे तो, है ना। सो वी आर एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द अफोर मेंशन्ड राइट्स। जितने भी राइट्स हमने पढ़े हैं वो इन्फोर्स होने चाहिए, ये इंश्योर्ड होना चाहिए। सिटीजन्स जो है वो डायरेक्टली सीख कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से और या हाई कोर्ट से अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे कि दिस will not work, and this is what is known as right to constitutional remedies. Both courts have the power to writs for the enforcement of the rights. तो वो अपना ऑफिशियल ऑर्डर दे सकते हैं और कह सकते हैं कि आपने इनके राइट को वायलेट किया है, ऐसा नहीं चलेगा। अब आता है राइट टू प्रॉपर्टी। ये फंडामेंटल राइट नहीं है जैसे हमने शुरू में देखा। आर्टिकल 19 और 31 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल टेक्स्ट जो है स्टैब्लिश करता था द राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन इस प्रिविलेज को एज अ फंडामेंटल राइट अब रिमूव कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट के साथ 1978 में। अब एक लीगल राइट दिया गया है अंडर आर्टिकल 30A कि हाँ लीगली आपको मिलना चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी, बट जो नहीं दे रहा है वो क्यों नहीं दे रहा है उस पर एक प्रॉपर डिस्कशन हो सकता है और अगर कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन है तो दैट कैन बी रिजॉल्व्ड। सो इट्स नॉट बेसिकली अ फंडामेंटल राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? सो बच्चे एवरी डे राइट्स तो फंडामेंटल राइट्स एक बार बन गए, पर अगर उनको बनाकर हम वैसे ही फ्रीज कर देते, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करते, उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, जितना पॉसिबल हो उतनी दूर तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, तो राइट्स कहीं ना कहीं एक तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ राइट्स। फॉर एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम है अगर, तो राइट टू फ्रीडम में हमने बोला राइट टू फ्रीडम ऑफ मीडिया भी है कि मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच दो, वो चीज़ों को हाईलाइट करे, लोगों के पास एक्सेस हो मीडिया और मीडिया की न्यूज़ के लिए ताकि पीपल आर अपडेटेड, दे नो व्हाट्स हैपनिंग। राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स हैं ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ और राइट्स हैं जो लोगों की ज़रूरत है, जो लोगों को ग्रांटेड होने चाहिए, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर एज अ सिटीजन, एज अ डेमोक्रेटिक सिटीजन, डेमोक्रेसी कहता है कि फुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आप सरकार को सवाल पूछो, यू बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, यू बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग एज अ सिटीजन। तो मेरे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मुझे अगर ये इन्फॉर्मेशन सीख करना है गवर्नमेंट से तो आई कैन गो टू द गवर्नमेंट एंड टेक दैट decision. So this right has to be given to me legally, like in the constitution. So हम क्या कर रहे हैं, we are only expanding the scope of rights. Maybe we are not putting everything as a fundamental right per se, but we are slowly increasing these rights, elaborating on them, making them more reachable for people, more relevant for people. So for example, right to vote in election, तो ये पॉलिटिकल राइट का हिस्सा है। ऐसे ऐसे चीज़ों को हमने इंक्लूड भी किया है अलग अलग राइट्स में। तो राइट्स के अंदर कुछ क्लॉजेस लग रहे हैं, कुछ नए लीगल राइट्स ऐड किए जा रहे हैं, अगर फंडामेंटल नहीं भी है नेचर में तो लीगल है एटलीस्ट, एंड दैट इज हाउ वी आर एवरी डे एक्सपैंडिंग ऑन दीज राइट्स। देन देर आर सर्टन ह्यूमन राइट्स, यानी कि सिर्फ एक ह्यूमन होने के नाते ये कुछ हक है जो आपका बनता है इंसानियत के तौर पे, चाहे आप जैसे भी हो। अगर आप यहाँ आए हो, ह्यूमन राइट्स आपको दूसरे कंट्रीज के लोगों को भी मिलेगा। सो ह्यूमन राइट्स विल बी ग्रांटेड टू यू। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रिवेसी, राइट टू एन एनवायरमेंट, राइट टू प्रिवेसी। अब मैं यहाँ घर में रहती हूँ, कोई मेरे घर में घुस जाए तो मैं कह सकती हूँ ना भैया कि आप मेरी राइट टू प्रिवेसी वायलेट कर रहे हो, आप मेरे प्राइवेट स्पेस में आ रहे हो, यू कैन नॉट एंटर इनटू माय प्राइवेट स्पेस। ये मेरा फंडामेंटल राइट भले ना हो, ये मेरा ह्यूमन राइट। एज अ ह्यूमन आई हैव दिस राइट ऑफ हैविंग माई ओन प्राइवेट थिंग्स, माई प्राइवेट लाइफ, माई प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू एन एनवायरमेंट, कोई बोलते तुम्हें नहीं उधर नहीं जाना है, तुम्हें गंदगी में ही रहना है, नहीं, मुझे एक्सेस होना चाहिए हर एक चीज़ का। राइट टू हैव एन एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस, सफिशिएंट फूड, वाटर, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, राइट टू लाइफ इज ऑल्सो देयर। ठीक है, सो ह्यूमन राइट्स क्या क्या इंक्लूड करती हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन,
और ऑल ऑफ द अबव? ह्यूमन राइट्स पूछा जा रहा है. Okay guys, so talking about the human rights, because हम human rights की बात कर रहे हैं. So right to life, जीने का हक हर एक इंसान को है, आज़ादी सबको है, फ्री एक्सप्रेशन सबको है. ये सब फंडामेंटल राइट्स, तो इनमें से कुछ तो फंडामेंटल राइट्स भी वैसे हैं, बट वो ह्यूमन राइट्स भी हैं कि ये तो मिलना चाहिए, इंसानियत के तौर पे मिलना चाहिए. Now we'll talk about the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. तो right to work, right to safe and healthy working conditions, right to an adequate standard of living and including adequate food, clothing and housing, right to social security and insurance, right to health and right to education falls under these things. तो basic cultural rights को protect करने के लिए, इकोनॉमिक या सोशल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ चीज़ें हमने की हैं, जहाँ पे हमने बोला है कि लोगों को राइट टू वर्क दो, राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए. आप किसी को बहुत ज़्यादा किसी भी हॉस्टाइल या डेंजरस वर्किंग कंडीशंस में नहीं भेज सकते हो कि फैक्ट्री में भैया लोगों की मौत हो सकती है, पर तुमने उनको बोल दिया कि जाओ यहाँ पे जॉब करो, यहाँ पे काम करना होगा. ये सब भी नहीं है. लोग उसके अगेंस्ट जो है केस फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, अपना हक के लिए लड़ सकते हैं. प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए खाने का, कपड़ों का, हाउसिंग का, सोशल सिक्योरिटी हो, यानी कि गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, एक डेंजरस इन्वायरमेंट में आप नहीं रह रहे हो, इंश्योरेंस हो, राइट टू हेल्थ केयर, हेल्थ हो कि आप अच्छे हेल्थ को वो कर सको. एंड राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो देयर. राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो नॉट एक्जैक्टली अ फंडामेंटल राइट बट इज़ वन ऑफ द लीगल राइट्स विच इज़ बीइंग ग्रांटेड. और उसी के हिसाब से 6 से 14 साल के लोगों को जो है स्कूल में मिड डे मील भी दिया जाता है, फ्री एजुकेशन भी दिया जाता है, और ₹0 जो फीस है वो चार्ज की जाती है. ठीक है. सो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो क्या है, ये हमने बहुत शुरू में देखा था, ग्वांटानामो बे के टाइम पे हमने इसको डिस्कस किया था. व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इट, रीजनल, लीगल, ह्यूमन राइट्स और व्हाट? किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल? सो बच्चे, दिस इज बेसिकली अ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये क्या है? ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द राइट्स टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स?
सो आइडियली कोई भी देश जो डेमोक्रेटिक है वो अपने सिटीजन्स को एक अच्छे हेल्थ केयर सर्विसेज का राइट देगा. ये बहुत सिंपल सी बात और अंडरस्टैंडिंग है जो होनी चाहिए. सो द स्टेटमेंट आइडियली इज सपोज टू बी ट्रू. ओके. Which fundamental right is called the heart and soul of our constitution? ये बताया था मैंने आपको, मैंने ऐसे बोला था बाप है, पर मतलब that's like the biggest deal that we have along with the other rights as described by Dr. B.R. Ambedkar है. वैसे ये तो सवाल में पूछा गया, तो बताओ which fundamental right acts like the heart and soul of all the other rights? सो गाइज अगर हमारे पास मान लो बच्चों सारे राइट्स हैं, लेकिन यही हक नहीं है, यही ऑप्शन नहीं है कि हम उनको क्लेम कर सकें, हम उनके लिए रेमेडी सीख कर सकें, तो कोई फ़ायदा है इन राइट्स का? कोई फ़ायदा नहीं है. सारा कुछ जो है वो फेल हो जाना है. इसीलिए जो हमारा ये रेमेडी वाला राइट है उसे हार्ट एंड सोल करके जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिफाइन करा है. So right to constitutional remedy is basically the fundamental right which is like the heart and the soul of our constitution. Okay. So with this, let's quickly summarize what we have done. तो हमने पढ़ा डेमोक्रेटिक राइट्स जो है आर सम ऑफ द राइट्स दैट आर गिवन टू सिटीजन्स टू मेंटेन द डेमोक्रेसी इट्स एसेंस इट्स स्पिरिट एंड प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बी इट अगेंस्ट द मेजॉरिटी फॉर माइनॉरिटी और इन जनरल फॉर द सिटीजन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट. The rights forbid the elected government from mistreating the general population. The significance of democratic rights stems from the fact that every citizen in the country has equal access to them regardless of the circumstances. So with this we have finished the chapter. We are conducting live classes. A new batch is going to begin, so please ensure that you are enrolled for it, you are staying tuned for that. And Imbibe is not going to be free for very long, you guys, so make sure that you're exploring as much as you want so that you know what's there for us to offer for you. And trust me, you love it and you would want to have access to those things. तो जब तक फ्री है अच्छे से एक्सप्लोर कर लो ताकि पता हो कि चाहिए या नहीं चाहिए. And we have more than 70,000 videos and 2,000 books available for you, so you can imagine how much money you would be saving around there without buying books. You can just go online, access everything and anything that you want, watch multiple kind of videos about all different kinds of topics, right from grade 6, like right from very school topics and syllabus, grade 9, 10, 12th, 11th, कॉलेज की पढ़ाई, हर एक चीज़ आपके लिए रेडिली अवेलेबल है. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन टेक एज मच प्रैक्टिस एंड टेस्ट एज यू वांट एंड देयर विल बी नो लिमिटेशंस अराउंड इट, राइट? So all of that is available with Imbibe, but again only last few days for the free access that you have. So make sure that you are connected with us. And the beauty of virtual lab experience, the 3D learning videos, the Imbibe lens, you're already aware about that. So make sure that you're not missing on it. एंड डाउट रेजोल्यूशन के लिए भी हमारे पास आपके लिए वंडरफुल सोल्यूशन है. आपको सिर्फ ऐप पे या वेबसाइट पे जाके यहाँ पे देखो आस्क अ डाउट पे जाना है एंड इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस चैट वेयर इन यू कैन बेसिकली गेट योर डाउट्स रिजॉल्व्ड. And if you are still not a part of the Telegram channel, please make sure that this is the QR code and that's the link. You use it and you do join the Telegram channel because all the important announcements, the updates, everything comes here and falls here. तो ये ज़रूर कर लेना. And with this I will say
bid adieu to you. Hasta la vista, bye bye, ciao. Take good care of yourselves, people. All the very best for your preparation. I'm sure you guys are going to rock your examinations and you're going to do wonderfully great in it. And for anything else, just let me know in the comment section. How did you like the video, and what else would you want me to bring? If there is any other support that I can get for you. And if you enjoyed the session, do hit the like button and share the video with your friends, and do not forget to subscribe. Till the next time, stay tuned, keep imbibing, take good care of yourselves, and have a great time.